Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is about categories that sell on Amazon. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज जो कि अमेज़ोन पे सेल हो रही हैं. So first is what is categories? Categories are classification or grouping of products based on shared characteristics used to organize and navigate through the available option on e-commerce platforms like Amazon. So now we discuss about categories that sell on Amazon. First we discuss about the top 10 categories that sell on Amazon. First is home and kitchen, that is 32%. Beauty and personal care 23%. Toys and games 20%. Clothing, shoes and jewelry 18%. Health, household and baby care 17%. Sports and outdoors 16%. Arts, crafts and sewing 15%, books 15%, kitchen and dining 14%, babies 14%, and the remaining categories order of popularity. Electronics is 14%, tools and home improvement is 13%, pet supply is 13%, office product is 12%, garden and outdoor is 12%, grocery and government food is 10%, appliances is 8%, cell phone and accessories is 8%, automotive part and accessories 7%, handmade products is 6%, apps and games related products is 6%, industrial and scientific product is 5%, computer related products is 5%, video games 4%, collectible and fine arts 4%, CD and vinyl is 3%, luggage and travel gear is 3%, musical instrument is 2%. That is the percentage on which categories are sale on Amazon. So we have discussed about the 10 categories that are selling as well as the remaining categories in order of popularity. What is the percentage that the categories that are selling on Amazon? Now we discuss about different types of categories. First is gated categories and the second is ungated categories. So we discuss what is ungated categories. Ungated categories are those categories that do not have any restriction allowing sellers to list without an approval. अनगेटेड कैटेगरीज में वो कैटेगरीज आ जाती हैं जिस पे अमेज़ोन की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. आप अमेज़ोन से आपको परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, अप्रूवल लेने की भी ज़रूरत नहीं होती सेलर्स को. आप जस्ट उसको सिंपली लिस्ट कर सकते हैं. जो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पे कोई कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज की जो प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो आप उनको सिंपली क्या कर सकते हैं, अमेज़ोन पे जाके लिस्ट कर सकते हैं. So now we discuss about the list of ungated categories. Ungated categories में कौन कौन सी categories हैं? First is home and kitchen है, sports and outdoors है, dye tools है, arts and crafts है, office products है, tools and home improvement, toys and games. So what is the gated categories? Gated categories is a type of category that require approval to sell on Amazon. एक ऐसी category की type है जिसमें अमेज़ोन पे सेल करने के लिए अमेज़ोन से अप्रूवल लेना पड़ता है. लिस्ट ऑफ गेटेड कैटेगरीज इज ऑटोमोटिव, बेबी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ब्यूटी, टॉयज एंड गेम्स, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स. सो हाउ वी कैन अनगेट गेटेड कैटेगरीज? अगर कोई गेटेड कैटेगरीज की प्रोडक्ट है तो उसको अनगेट कैसे करवा सकते हैं? सो देयर इज़ फनल गुरु. इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई है. यहाँ पे इनसे भी आप कांटेक्ट करके उनसे भी जो गेटेड कैटेगरी से उनको अनगेट करवा सकते हैं. उसके अलावा बूट्स यूके के लिए है और इसकी इनवाइस भी एक्सेप्टेड है. इसके अलावा प्राइस मास्टर है, यूएसए के लिए है और इसकी प्राइस जो इनवॉइस है वो भी एक्सेप्टेड है. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट्स टू अवॉइड. किन प्रोडक्ट्स से हमें अवॉइड करना चाहिए कि इन प्रोडक्ट्स में हमें नहीं जाना चाहिए. जो ओवर साइज़ प्रोडक्ट्स हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा है, इसमें बाद में हमें इश्यूज आते हैं लाइक शिपिंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि साइज़ की वजह से, और जिनका वेट ज़्यादा है उसमें भी हम नहीं जाएंगे.
क्योंकि उसमें वेट ज़्यादा होने की वजह से भी हमें शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। और ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि इजीली ब्रेकेबल हों, जो टूट जाएँ, उसके यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा अगर टूट जाते हैं या एक दो भी टूट जाते हैं, तो उससे हमें क्या होता है कि वो कॉस्ट हमें यानी कि हमारा वो नुकसान हो रहा है उसमें। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो ब्रेकेबल चीज़ें हैं उसमें ना जाएं, उन कैटेगरीज़ में उन प्रोडक्ट्स को ना चूज़ करें। उसके अलावा हैज़मेड प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स विच कैन कैच फायर इजीली, इसमें इन फायर कैचिंग प्रोडक्ट्स में हमें नहीं जाना चाहिए जिनको आग वगैरह लग सकती है, ताकि ये ना हो कि हमारे जो सारा इन्वेंट्री है वो फायर कैचिंग होने की वजह से, तो उस यानी सारी वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है, तबाह भी हो सकती है अगर उसको आग वगैरह लग जाती है तो। उसके अलावा बैटरीज़ की प्रोडक्ट्स में नहीं जाना चाहिए, इसके क्लेम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, इस बैड रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे अगर इसमें थोड़ा बहुत इशू भी हो जाए तो। उसके अलावा मल्टीपल वेरिएशंस, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हों, तो इससे क्या होगा, हमें बजट बहुत ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर किसी के पास बजट बहुत ज़्यादा है तो फिर वो मल्टीपल वेरिएशन को चूज़ कर सकता है। अदरवाइज़ मल्टीपल वेरिएशन की अगर प्रोडक्ट्स भी आप देखते हैं तो उसमें वो वेरिएशन चूज़ करो जिसकी सेल ज़्यादा हो, जिस पे बाकी हमारा क्राइटेरिया मीटअप हो रहा। उसके अलावा वेपन्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स में हमें नहीं जाना चाहिए, और केमिकल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके अलावा हम अमेज़ॉन के सेलर सेंटर पे अमेज़ॉन के अकाउंट को ओपन करते हैं। ये अमेज़ॉन का बायर अकाउंट है, amazon.com हमने लिख के सर्च किया और ये ओपन हो गया। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, लास्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ये एक आपको टैब शो हो रहा है, यहाँ पे मेक मनी विद अस, इसके नीचे है सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जब हमने सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये टैब ओपन हो गया। यहाँ पे हम स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे हाउ टू स्टार्ट सेलिंग। ये हमारे पास ओपन हो चुका है। हाउ टू स्टार्ट सेलिंग में जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे हमने करना है एडिंग योर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट की कैटेगरीज शो होना शुरू हो जाएंगी, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें हम जा सकते हैं, कौन सी रिस्ट्रिक्टेड हैं, कौन सी अनरिस्ट्रिक्टेड हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट कैटेगरीज, एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट कंडीशंस अलाउड कैटेगरीज विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। तो ये कैटेगरीज हैं जिन पे अमेज़ॉन ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे हम स्क्रॉल डाउन नीचे को करेंगे, यहाँ पे एक हमें शो हो रहा है कैटेगरीज विद रिस्ट्रिक्शन, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो ये जो कैटेगरीज जिन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, लाइक अल्कोहल है, एनिमल्स रिलेटेड प्रोडक्ट है, ऑटोमोटिव है, बेबी प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी की प्रोडक्ट्स है, तो इन पे क्या है, ये रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है। तो ये अमेज़ोन बता रहा है कि ये जब आप उसको सेल करोगे तो इसके लिए अमेज़ोन से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो यानी कि एक्चुअली में अमेज़ोन ये चाहता है कि जो उसके बायर्स हैं उनका ट्रस्ट अमेज़ोन से ख़त्म ना हो। तो उसके ट्रस्ट को कायम रखने के लिए वो क्या करता है कि जो इस तरह की बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होगी जिसमें इश्यूज आ सकते हैं, तो वो चाहता है कि जो सेलर्स हैं वो पहले उसे चेक करवाएं, वो प्रोडक्ट्स वो उसे चेक करे कि ये वाकई प्रोडक्ट ठीक है, मेरे बायर्स के लिए नुकसानदेह तो नहीं हो सकती। फिर उसके बाद वो अलाउ करता है कि हाँ भी आप प्रोडक्ट्स को इसको अब आप सेल कर सकते हो अमेज़ोन पे। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कैटेगरीज़ के बारे में, गेटेड और अनगेटेड कौन सी कैटेगरीज़ हैं। फिर अमेज़ोन के यहाँ पे आके हमने चेक भी कर लिया कि कैसे हम ये देख सकते हैं अमेज़ोन पे भी कि गेटेड कैटेगरीज़ कौन सी, अनगेटेड कौन सी हैं, और देन हम चूज़ कर सकते हैं। वैसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो विदाउट रिस्ट्रिक्शन कैटेगरी से उनमें जाएं। ये डॉक्यूमेंटेशन वाला जो प्रोसेस है इससे अवॉइड करना चाहिए।
ताकि हम इजीली उसको लिस्ट कर सकें ना प्रोडक्ट्स को, जिस भी हम कैटेगरीज में जाना चाह रहे हैं, हमें कोई इस तरह के इश्यूज़ ना आए, स्मूथली हमारा काम हो सके। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।